Hello friends, welcome to the YouTube channel Vidhi Judicial Academy and myself Vijay Verma. I am the director and mentor at the Vidhi Judicial Academy. Now in this video we are going to discuss a very important topic of the law of torts, that is whether it is the law of tort or the law of torts. I hope you will enjoy this video and please keep your pen, keep your highlighter with you, and we have given the notes of this lecture in the link. Please, you can download those notes, and then with those notes you try to understand this topic. Thank you. So let's start with the topic of the day, and the topic is what we have to discuss. There has been a controversy between the Salmond and the Winfield. These are two jurists, Salmond and Winfield. There has been a controversy between these two guys, and that was regarding what exactly is the nature of the law of tort. लॉ ऑफ टॉर्ट की एग्जैक्टली नेचर क्या है, इस पर दोनों में विवाद था. वन वाज सेइंग दैट इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अदर वाज सेइंग दैट इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट. सो वेदर इट इज a law of tort or whether it is the law of torts, it is the question for you and it is the topic for you. You will get the questions in your mains. In this you will get the short note in that case. So this topic is very important for your short note point of view for your mains examination. समझ में आई था आपको? मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा. कैसे आएगा? वेदर लॉ ऑफ टॉर्ट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स. दिस इज डिस्कस, एक्सप्लेन, व्हाटएवर, और राइट शॉर्ट नोट लाइक दिस ऑन दिस. तो you should prepare this topic according to that. You will have to prepare a short note on that. Apart from this topic is very important for your prelims exam as well. You will have to read between the lines. What I am saying, when I say between the line means you will have to focus each and every word. I will be highlighting everywhere. जहां से क्वेश्चन आएगा I will be guiding you, but you will have to keep all those words in your mind, otherwise you may lose the questions. And don't forget what is our target. Our target is the 100% in the questions of tort के क्वेश्चन में हम लोगों ने 100% स्कोर करना है. मीन्स इफ यू आर गेटिंग 10 क्वेश्चंस, you will have to solve 10 out of 10. If you are getting 20 questions, you will have to solve 20 out of 20 questions. So this is our target and this is very easy as well. Just we have to develop a temperament of good reading. बस अच्छी तरीके से रीड करने का हम लोगों ने टेम्परामेंट डेवलप करना है, और ये कर पाओगे आप. 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 20 में से 20 100% करना है आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं इस टॉपिक पे. आपको सिर्फ वैसा करना है जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहूंगा. हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, उनके लिए एक ही बुक है, बांगिया. दोनों एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, तो कहीं दूर भी नहीं जाना है इसमें. मीडियम का फर्क नहीं पड़ने वाला, पहुंच जाता है इसमें. तो प्लीज लेट्स गो इनटू द टॉपिक नाउ. एंड नाउ प्लीज सी द स्लाइड. यहां से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. ठीक है गाइज, बढ़े आगे को. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज द स्लाइड. दिस इज आवर टॉपिक. इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट? देखिए, दिस इज व्हाट टॉर्ट और इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट्स. तो टॉर्ट एंड टॉर्ट्स, बेसिकली दिस इज द डिफरेंस कि वेदर इट इज a law of tort or it is a law of torts. You will have to decide कि exactly what is the nature of the law of tort, कि exact nature क्या है. कहां से क्वेश्चन ओरिजिन हुआ? एक जूरिस्ट है मिस्टर सामंड, and this is the question. His book was torts. The book of the Salmond was torts, and this is the question for your prelims. In his book he raised a question. इन्होंने क्वेश्चन रेज किया, and this was the question: does the law of torts consist of fundamental general principles or a number of specific rules? This is the basically question. उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि whether it consists of fundamental general principles or a number of specific rules. क्या डाला मैंने, ये आपको समझाता हूं बहुत ढंग से, समझने की कोशिश कीजिए इसको. कि फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल, मूलभूत सामान्य सिद्धांत या एक निश्चित नियम. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या केवल कुछ निश्चित नियम है या कोई एक सामान्य सिद्धांत है? जनरल प्रिंसिपल मीन्स एप्लीकेबल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, एप्लीकेबल एवरीवेयर. When a principle is general, it means it is applicable everywhere. जैसे as in case of criminal law,
principle of mens rea, there must be guilty mind, otherwise there will be no crime. That is what a general principle, सामान्य सिद्धांत है मेंस रिया की प्रेजेंस का इन एवरी ऑफेंस. तो एक सामान्य सिद्धांत हुआ, ये समझ रहे हैं आप. ये सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं तो लॉ ऑफ सामंड ने क्या कहा, सामंड ने कहा अपनी बुक में डिस्कस किया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द पोजीशन, वेदर इट इज ए फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल, इट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल और ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स. नहीं आया समझ में आपको, इसको पढ़ के देखिए. ये पहले इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल्स. इट मींस व्हाट, that it is wrongful to cause harm to other persons. What? It is wrongful to cause harm to other persons in the absence of some specific ground of justification use. यहाँ का समझिए क्या मतलब इस बात का. आपको मैंने स्लाइड पढ़वा दी, आपको मैंने कुछ बेसिक बातें बताई, अब दोबारा ढंग से इसको समझ लीजिए क्या मतलब इसका. डिस्कशन क्या है सामंड का. सामंड का डिस्कशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वेदर जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल्स. इसकी बात करते हैं, पहले हाफ पार्ट की बात करते हैं कि क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसी सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, ऐसे समझिए. वेदर इट इज बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल, वेदर इट कंसिस्ट ऑफ सम फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन इज रेज्ड बाय हुम, क्वेश्चन इज रेज्ड बाय सामंड. इसका मतलब क्या है कि क्या कोई एक ऐसा सिद्धांत है, व्हाट, क्या कोई ऐसा सिद्धांत है दैट इट इज रॉन्गफुल टू कॉज हार्म टू अदर पर्संस, कि जो ये मानता हो, सिद्धांत की मान्यता ये हो कि दैट सेज व्हाट, इट इज रॉन्गफुल टू कॉज हार्म टू अदर पर्संस, किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाना गलत होगा, रॉन्गफुल होगा, इट विल बी रॉन्गफुल इफ यू डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ some specific ground of justification. If you don't have any justification for this, you will be have to compensate the person who is harmed, who is injured, who is caused injury. नहीं आई बात समझ में, दोबारा समझिए क्या मतलब इस बात. देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट, पहली बात क्या करेंगे, क्या लॉ में कोई ऐसा सामान्य सिद्धांत है, क्या लॉ ऑफ टॉर्ट एक किसी सामान्य सिद्धांत पर आधारित है जो ये कहता हो कि आपको सिर्फ यह देखना है कि अगर आपने, किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई, इफ ही कॉज्ड हार्म टू अदर पर्सन, इफ ही कॉज्ड हार्म टू अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति को उन्हें क्षति पहुंचाई, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट. दोनों बातें हैं, कॉजिंग हार्म विदाउट जस्टिफिकेशन. In that case, the person, the doer, the wrongdoer, that should be made liable for his actions. For example, it is wrongful to defame anyone. किसी की मानहानि करना गलत होगा. सही है. अब आपने उसको कहा कि ये व्यक्ति एक नंबर का आवारा और दिस दैट है, ब्ला ब्ला है, and you are talking this in the marketplace, in his local area, thereby defaming him. You are causing defamation of that person. उस व्यक्ति की मानहानि कर रहे हैं. Now, but you have some kind of justification for that because of the past record. You have the person knowledge of his criminal background. You have the knowledge of so many illegal activities in which he is involved. आपको उसके आपराधिक क्रियाकलापों की जानकारी है और जितनी इलीगल गतिविधियां हैं जिनमें संलिप्त है उसके बारे में भी ज्ञान है. Now he is saying, the person जिसके बारे में डिफेम किया आपने, वो कहता है कि I will sue you because you defamed me. Then you otherwise you have a justification. No, I was telling a truth. मैं सच बयां कर रहा था, मैंने जो कहा था वो सच है. ये हुआ आपका justification. You caused him harm, you caused him injury to his reputation, but there was no absence of justification. You had a justification in this case. नो ऑन इसकी कॉन्ट्रेरी में चले जाइए आप. अगर आपने किसी को कुछ भी बोला विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, एंड यू आर डिफेमिंग समवन, इट मीन्स यू आर कॉजिंग हार्म टू दैट पर्सन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. तो दिस विल बी अ रॉन्गफुल एक्ट इन द आई ऑफ लॉ. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये है जो पहली बात है. व्हेन वी से वेदर देयर इज जनरल प्रिंसिपल, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ भी गलत काम करा, यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग विदाउट एनी कैटेगराइजेशन,
यू विल हैव टू कंपनसेट फॉर दैट इफ यू डोंट हैव जस्टिफिकेशन। तो ये तो एक सामान्य बात। जैसे कि एक स्टूडेंट है हमारे अमनप्रीत, अमनप्रीत के फादर ने ये कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत आई, देखो शब्द क्या कर रहा हूं, कोई भी शिकायत आई, इफ आई एवर रिसीव एनी कंप्लेंट फ्रॉम नेबरहुड, आई विल पेनलाइज यू, आई विल गिव यू बीटिंग्स, आई विल स्कोल्ड यू, यू विल बी held liable for that. I don't want to hear any bad word from any of the neighbor, any of your teacher, any of your colleagues, any of your friends. So this is the general principle. इस बात को ध्यान रखना, तुम इस बात को ध्यान रखोगे कि कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे कोई भी शिकायत आए। तो ये सामान्य नियम हो गया, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अब अगर अमनप्रीत से दूसरी बात कही जाए कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ये कभी ना सुन लूं कि तुमने कभी कोई चोरी की, तुमने किसी की लड़की को छेड़ा, तुमने किसी के यहाँ पर किसी के साथ मार पिटाई की, तुम यहाँ पर कहीं पर जुआ खेलते पाए गए, 4-5 बातें मैं बोल रहा हूं, यहां इन पॉइंट्स पर मैं कभी भी तुम्हारी बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगा एंड आई विल पेनलाइज यू, मैं तुम्हें उसके बारे में सजा दूंगा। तो नाउ इन दैट केस, इन द सेकंड कैटेगरी देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स। नाउ इन नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स, प्लीज सी दिस, दिस इज number of specific rules। आप समझ रहे, number of specific rules। तो in my second example the father of the Amanpreet has made certain specific rules that you will not do number 1, number 2, number 3, you will not commit robbery, dacoity, theft, you will not give beating to anyone, you will not be found playing gambling, you will not found drinking outside। These are 4 specific rules I am warning you। So in the first category, what his father said, I am giving you warning, I should not receive any complaint from anybody against you for any bad act, any wrongful act। So that is a general principle, otherwise I will give you punishment accordingly। And in the secondly, I am giving you specific rules, you will not do number 1, 2, 3, 4, otherwise I have no problem। So this is the basic question raised by the Samand कि where does the law of tort stands। लॉ ऑफ टॉर्ट, अपकृत्य विधि कहां पर है खड़ी पाई जाती है, क्या है एग्जैक्टली क्या ये किसी सामान्य सिद्धांत पर आधारित है कि अगर कोई भी अगर आप रॉन्गफुल कार्य करेंगे तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, या कोई निश्चित नियम है जिनका अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको उसके बारे में पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं इस बात को, इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो समझिए फिर बाकी का टॉपिक आपके लिए हलवा टाइप है, इसी को समझ लीजिए आप। देखिए एक लैंग्वेज पढ़ाता हूं आपको मैं, प्लीज सी द स्लाइड। बेसिक चीज है, फर्स्ट इज व्हाट, फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल। इन दोनों, वेदर दिस इज द लॉ ऑफ टॉर्ट और दिस इज, इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या है। पहले का मतलब क्या है, दैट इट इज wrongful to cause harm to other persons, इट इज wrongful to cause harm to other persons, अन्य व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना गलत है। ये एक सामान्य नियम हो गया, कब, इन द एब्सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ जस्टिफिकेशन। समझे, अगर आपके पास उसके लिए कोई जस्टिफाई करने के लिए कोई विशेष आधार नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना गलत है। या तो ये सामान्य नियम है, या दिस इज ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स, या फिर दूसरी बात है कि क्या एक निश्चित विशेष नियम है, what those rules did do, prohibiting certain kind of harmful activity, एक निश्चित प्रकार की हार्मफुल एक्टिविटी को, हार्मफुल एक्टिविटी मीन्स जो नुकसानदेह गतिविधि को प्रोहिबिट करते हैं, उसको प्रतिषेध करते हैं, एंड लीविंग ऑल द रेजिड्यू आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाकी का जितना भी रेजिड्यू है, जो भी जितनी गतिविधियां हैं उसको वो अलाउ करते हैं, उसको नहीं बात करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए प्लीज समझिए इसको, ये सेकंड बात है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं उसको। देखिए, लीविंग ऑल द रेजिड्यू आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट कंसिडर दिस स्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मैंने घेरा बनाया है ये आपका दायित्व का घेरा है। वो कह रहा है कि इफ योर activity comes into the sphere of this,
one person, this is you committed so many wrongful acts. These are the wrongful acts. 6, you did certain 6 wrongful acts. Out of them 4 comes within the sphere of responsibility and 2 remains outside. Now you are getting this point. So this, according to this, whether the जो भी एक is there sphere of responsibility, उस responsibility के जो घेरा है उसके अंदर तक जो आएंगे केवल उसी को हम लोग इलीगल एक्टिविटी या रॉन्गफुल या टॉर्ट कंसिडर करेंगे, और जो रह गया बाहर, इस स्फीयर से बाहर जो रह गया, ये जो 2 बाहर रह गए, क्या इनको हम कुछ, इनके लिए लॉ में कोई रिमेडी नहीं होगी. लॉ एज ए टॉर्ट विल रिकॉग्नाइज only those activities which comes within the sphere of responsibility. So this is the meaning of the number of specific rules. So basically this is the discussion point of discussion raised by the Samand in his book, namely named the tort. And what was this? Whether the law of torts consists of what? Fundamental general principle, or it consists of number of specific. क्या वो एक मूलभूत सामान्य सिद्धांत से बना है या कुछ स्पेसिफिक नियमों का कलेक्शन मात्र है? तो ये है प्रश्न. या अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. क्वेश्चन ये है, इज इट द लॉ ऑफ टॉर्ट? क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट्स? क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है या ये लॉ ऑफ टॉर्ट है? इसका मतलब क्या है? एवरी रॉन्गफुल एक्ट to be treated as tort. Please see this side. क्या मतलब हुआ? When we say it is the law of tort, जब हम ये कहते हैं कि ये law of tort है, तो इसका मतलब सिंप्लीफाइड शब्दों में ये हुआ that every wrongful act is to be treated. प्रत्येक wrongful act को tort माना जाएगा, tort act माना जाएगा, जिसके लिए कोई भी justification या excuse नहीं हो. तो when we are saying this is the law of tort, it means every wrongful act should be compensated. There should be a remedy for every wrongful act. There are no exclusions. We will have to see only whether there was justification for that wrongful act or not. उस wrongful act के लिए कोई justification था या नहीं था. If there is no justification, then it should be compensated. It should be treated as a tort. Every wrongful act. Please see the slide. Every wrongful act should be treated as a tort. प्रत्येक गलत कार्य को टॉर्ट माना जाए अगर हम कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट है. और अगर हम कहते हैं दिस इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन देयर आर ओनली नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स. केवल कुछ ही गलत कार्य हैं, उनके बियॉन्ड विच, जिनसे परे द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच कैन नॉट अराइज. उनसे बाहर कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती. समझे आप? आपको नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं. देखिए इस बात को समझिए. कंसिस्टिंग ओनली ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स एंड बियॉन्ड विच देयर इज नो रिस्पॉन्स. अमनप्रीत के फादर ने अमनप्रीत के छोटे भाई को बुलाया कि बेटा यहां आओ और अब मेरी बात गांठ बांध लो. तुमसे सिर्फ एक काम करना है. तुम्हारी मुझ पर यह शिकायत नहीं आनी चाहिए थी तुमने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया. 1, तुमने किसी की चोरी डकैती या ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी किया, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी किया, और यू हैव मेल्ट्रेटेड ए गर्ल. इन 3 बात के आगे इन तीनों उसके आगे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, दीज 3 ओनली, दीज आई विल ट्रीट only the complaint of these 3 acts to be a wrongful act. Beyond that, beyond these 3 acts, whatever you do, I will not consider as it is a wrong. And who am I? I am law of tort. So law of tort have given you instructions that only 3 wrongs will be considered as tort. Now there comes a report against him. अमनप्रीत के छोटे भाई के खिलाफ एक कंप्लेंट आती है. क्या कहती है कि योर सन इज फाउंड प्लेइंग गैम्बलिंग इन द ओपन स्पेस. ओपन स्पेस में गैम्बलिंग कर रहा था, और एंड सेकेंडली ही वाज आल्सो कंज्यूमिंग लिक्वर. शराब भी पी रहा था ओपन प्लेस में. अब यहां पर विकट समस्या आ गई कि नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अगर हम माने
तो his father had specified only these 3 wrongs: offenses against body, offenses against property and maltreatment with the girls. इन 3 के beyond now he is found drinking. जो उसकी एक्टिविटी है, ड्रिंकिंग इन दी, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ड्रिंकिंग लिक्वर हेयर इन दिस केस, ड्रिंकिंग इन ओपन स्पेस, गैम्बलिंग, ये तो कवर नहीं थे. तो अगर हम ये माने सेकंड कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही विल बी एक्सक्यूज्ड बिकॉज ही वाज नॉट प्रोहिबिटेड. ही वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग ओनली दी 3 थिंग्स. स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक रॉन्ग्स का प्रोविजन था बस. देयर वाज रॉन्ग ओनली फॉर द स्पेसिफिक रॉन्ग्स. देयर वाज a prohibition on only specific wrongs, that you will not commit any activity involving against a wrong to property, wrong to person, or the misbehavior with the girls, beyond which there was no responsibility. So if we take this example in your mind and then you read it, तब समझ में आएगा आपको. हिंदी में समझाऊं? हिंदी में समझ लीजिए. अमनप्रीत के फादर ने अमनप्रीत के छोटे भाई के लिए जो दिशा निर्देश दिए, उसमें यह कहा कि तुम मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, किसी संपत्ति के विरुद्ध अपराध और स्त्रियों के साथ बुरे व्यवहार से बचोगे. ये 3 स्पेसिफिक रॉन्ग है मेरी नजर में. अगर तुमने इनमें से कुछ किया तो आई विल हैव टू पनिश यू. पनिशमेंट का मतलब आई विल हेल्ड यू, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट. तो अमनप्रीत के छोटे भाई ने कहा, तो पिताजी इसका मतलब ये कि मैं इसके अलावा कुछ भी करूं? बियॉन्ड दैट यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि यू विल बी हेल्ड लायबल, एंड बियॉन्ड दैट यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल. उससे विरुद्ध बियॉन्ड आप लायबल नहीं हो गए. तो इस बात को हम लोग समझते हैं. एक बार को फिर स्लाइड पढ़ते हैं. देखिए क्या है. देखिए क्या कहा इन्होंने. A number of specific wrongs consisting only of number of specific wrongs, जैसे मैंने बताया नंबर 1, 2 and 3, property, body, maltreatment with the girls. These 3 things in our example, मैंने जो आपको उदाहरण दिया उसमें 3 specific wrongs को मना किया गया बस. Beyond those, beyond which the liability under this branch of law cannot arise, उसके बाहर कुछ भी एक्टिविटी की, जैसे 4th नंबर की एक्टिविटी कोई की उसने, 5th नंबर की एक्टिविटी की, 6th नंबर की, तो these are the activities beyond the specific wrongs and for these there is no responsibility. तो अगर हम ये कहें कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है तो इसका मतलब ये माना जाए. और इसका मतलब क्या हुआ? एवरी wrongful act, it means whether you are committing 1, 2, 3 and so on 100, every wrongful act to be treated as tort, there is no exemption, there is no excuse. अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है आपके 1, 2, 3 wrongs का, तो every wrongful act will have to be treated as the tort and you will not be excused from that. So basically this was what I am trying to make you what is all about the topic. Topic is this: Salmond in his book, namely Torts, raised the question. What was the question? This was the question: does the law of torts consist of fundamental general principle और ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स? तो जितना भी लेक्चर मैंने अभी आपको दिया है यहां तक, इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस समझाया है. फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट, और व्हेन वी टॉक अबाउट ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स इट मींस लॉ ऑफ टॉर्ट्स. तो वेदर इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट or it is law of torts, it was the discussion, it is our discussion. Now we will go कि what is the opinion of the jurist. तो सामंड की क्या opinion है, and now we will come to study, we will study what is the opinion of Winfield in this regard. So now come to the opinion of Winfield, and this is Mr. Winfield. What he says it is the law of tort. What? Law of tort. Don't forget this line. And this because why? Because this is the question of prelims for you. Who said it is the law of tort and not the law of torts? कैसे क्वेश्चन आएगा? Please see the question. This is what the question. This is the main supporter of the theory that it is law of tort, not the law of torts, is what?
Winfield. This is the question for your prelims. I have shown you. So this is the main supporter of the theory that it is law of tort and not law of torts is Winfield. This is the question for your prelims. समझे आप लोग? तो यहां से क्वेश्चन आया, मैंने आपको दिखाया, and what he says exactly. Mr. Winfield says what? Law of tort imposes general liability, and this is the question of prelims again. Who says that law of tort imposes general liability? General liability upon whom? General liability upon every person. क्या है responsibility? Not to injure any person. Not to injure any person. किसी व्यक्ति को इंजर नहीं करना है, ये liability है, सभी के ऊपर है. And shall be liable, नहीं तो वो उसके लिए उत्तरदायी होगा. Shall be liable if there is no lawful justification for the same. यदि उसके लिए कोई विधि सम्मत जस्टिफिकेशन नहीं है तो वह उस इंजरी करने के लिए लायबल होगा. दिस इज द जनरल लायबिलिटी. सामान्य लायबिलिटी है, सामान्य. अब समझिए. तो व्हाट द विनफील्ड सेड इन दिस केस, इन दिस ऑन दिस पॉइंट, क्या कहा विनफील्ड ने? विनफील्ड इज द सपोर्टर ऑफ द फर्स्ट व्यू. यू हैव नो, वी हैव सीन दिस. सी दिस, क्या हम लोगों ने देखा था? हमने को ये देखा था अभी. सी दिस, दिस वाज आवर क्वेश्चंस कि वेदर देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल. हम लोग डिटेल में अभी समझे हम लोगों ने. विनफील्ड इज द सपोर्टर ऑफ दिस. विनफील्ड, दिस इज विनफील्ड. विनफील्ड का कहना यह है कि दिस कंसिस्ट ऑफ द फंडामेंटल जनरल प्रिंसिपल्स, एंड इन हिज वर्ड्स स्पेसिफिकली ही सेज कि लॉ ऑफ टॉर्ट इंपोजेस ए जनरल लायबिलिटी. जो अपकृत्य विधि है प्रत्येक व्यक्ति पर सामान्य लायबिलिटी का अधिरोपित करती है. हिंदी चेक कर लीजिएगा, मैंने कोशिश की अच्छी तरीके से बोलने की. सामान्य लायबिलिटी, सभी के ऊपर एक सामान्य लायबिलिटी अधिरोपित करती है. इंपोजेस ए जनरल लायबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन. व्हाट इज द जनरल लायबिलिटी? This is not a specific liability कि you will be liable only specifically when you do this and if you don't do this. It is the general liability. And what is the general liability? That is if you injure anyone. That is what you should, what is liability? You should not injure any person. आप किसी व्यक्ति को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे. ये एक सामान्य नियम है. सुनो, सभी को चेताया जाता है. एवरी पर्सन इज वार्न्ड दैट नो वन शैल इंजर एनी अदर पर्सन. दिस इज द जनरल लायबिलिटी ऑन एवरी पर्सन. एक आपके इलाके मनादी की गई, ठीक है, देयर वाज ए प्रोक्लेमेशन. क्या? whoever will go without mask, he shall be punished. So this is what general law, general liability, सभी के ऊपर लायबिलिटी थी गई है. किसी एक को नहीं गई कि ए बी सी मास्क पहनेगा, बी सी डी नहीं पहनेगा, ये नहीं है. दिस इज द जनरल लायबिलिटी, मीन्स इट इज एप्लीकेबल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. नंबर वन, इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी पर्सन. एंड व्हाट इज द लायबिलिटी? उसका एक ही नियम है कि नॉट टू इंजर एनी पर्सन विदाउट जस्टिफिकेशन. किसी व्यक्ति को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंजरी मे बी टू द फिजिकल पर्सन, इंजरी मे बी टू हिज प्रॉपर्टी, इंजरी मे बी टू हिज रेपुटेशन, इंजरी मे बी टू हिज मेंटल पीस एज वेल. इंजरी इज अ कॉमन वर्ड है. इंजरी को हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो दिस इज द जनरल लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू विनफील्ड कि लॉ ऑफ टॉर्ट इंपोजेस जनरल लायबिलिटी. अपकृत्य विधि सामान्य लायबिलिटी आप पर अधिरोपित करती है. और वो क्या है आपके पास? लायबिलिटी क्या है कि आप किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, और क्षति पहुंचाई देन यू शैल बी हेल्ड लायबल, उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे. दीज आर द वर्ड्स. विनफील्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट. इट इज नॉट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इट इज लॉ ऑफ TORT, टॉर्ट. सही है? आगे समझिए क्या मतलब है. इसने अपनी बात को किस तरीके से समझाने की कोशिश की विनफील्ड को, उसको पढ़िए. देखिए क्या. इफ आई इंजर माई नेबर, अगर मैं अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाता हूं, इफ आई इंजर माई नेबर ही कैन सू मी इन टॉर्ट, वो मुझे टॉर्ट में सू कर सकता है, वो मुझे लॉ ऑफ अपकृत्य विधि के अंतर्गत मेरे पर वाद ला सकता है. यदि मैं अपने
नेबर को क्षति पहुंचाता हूं, अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाता हूं, तो वह व्यक्ति, वह मेरा पड़ोसी मुझे अपकृत्य विधि में मेरे ऊपर वाद ला सकता है, मुझे सू कर सकता है, कोर्ट में मुझे घसीट सकता है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबर हेयर? नेबर का मतलब यह है कि फॉर whom I owe some kind of duty, जिसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य बनता है। वो आपका एकदम निकट पड़ोसी, रेजिडेंशियल पड़ोसी हो सकता है, वो आपके चलते फिरते, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जो गाड़ी में जो रास्ते पे लोग चल रहे हैं, दे आर योर नेबर्स। तो इफ आई इंजर माई नेबर ही कैन sue me in tort whether the wrong happens to have particular name or not, whatever I do, यानी कि wrong, whether that wrong is named by certain kind of activity or not, उसका कोई पहले से निश्चित नाम हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिर्फ ये देखा जाएगा आई एम इंजरिंग माई नेबर विदाउट जस्टिफिकेशन, देयरफॉर आई शुड बी हेल्ड लायबल। इट डजंट मैटर वेदर दैट एक्टिविटी, वेदर दैट wrongful act had a certain name before that or not। समझ में आई बात आपको? प्लीज सी दिस साइड। समझा आप लोगों ने? विनफील्ड ने कैसे समझाया आपको? विनफील्ड ने कहा कि आपको सिर्फ ये देखना है कि वेदर यू आर इंजरिंग समवन और नॉट एंड वेदर यू हैव जस्टिफिकेशन और नॉट। इफ यू डोंट हैव जस्टिफिकेशन फॉर कॉजिंग दैट इंजरी, यू शैल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। दैट्स इट। यदि आप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आपको उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग। दिस इज कॉल्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस रॉन्गफुल एक्ट का पहले से कोई स्पेसिफिक नेम है या नहीं है। समझे आप? और डिटेल समझाना है? जैसे इस लाइन को समझना चाहते हैं आप, इसको समझिए। चलिए देखिए, प्लीज से दिस लाइन, ये लाइन समझने के लिए है। क्या उनसे लाइन? वेदर द रॉन्ग हैपन्स टू हैव पर्टिकुलर नेम लाइक असॉल्ट, बैटरी, डिसीट, स्लैंडर, और वेदर इट हैज नो स्पेशल टाइटल एट ऑल। इसका मतलब क्या है? समझिए इस बात को। इसका मतलब यह है कि आई डिड समथिंग रॉन्ग। सपोज what I started an industry. I started an industry and that is dealing with the nuclear activity, uranium. विस्फोटक सामग्री है मेरे, जो मैं आई एम वर्किंग विद सम हैजार्डस एक्टिविटी। फाइन। नाउ देयर इज a leakage of gas from my factory, and because of the leakage of gas that causes death of so many persons। मेरी फैक्ट्री से एक गैस लीक होती है जिसकी वजह से काफी लोग आसपास के रहने वाले मर जाते हैं। फाइन। नाउ I say in my defense that it was due to the negligence of my employee, or there was an earthquake, act of God आ गया, तो I am trying to justifying that my activity। Now question before the court is that कि if we take it leniently, जो existing law है negligence का, तो liability से बच जाएगा ये इंसान, क्योंकि इसकी डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं है। He has taken, Vijayendra Verma has taken full precautions. He has employed all the certified parameters, सब कुछ उन्होंने सही करा था तब भी, लेकिन फैक्ट इज दिस कि काफी लोगों की डेथ हुई है। नाउ देयर इज नो सच प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री, इतिहास में इससे पहले कभी ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं है। तो देयर इज नो रॉन्ग। अब पढ़ो जरा इसको, देखिए क्या, whether the wrong happens to have particular name, जो wrong हुआ है इस समय, इसमें एग्जांपल जैसे कि causing death due to leakage of gas happens to have particular name or it has no special title। अब मेरी वाली जो एक्टिविटी है लीकेज ऑफ गैस, इसकी कोई भी पहले से कोई निश्चित नाम नहीं है। लायबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ भी इससे पहला ना कभी हुआ, इसलिए कोई रॉन्ग था ही नहीं इसका नाम का। तो अगर मैं ये कहूं कि सर मुझे लायबिलिटी किस हेड में देंगे आप, देयर इज नो सच हेड ऑफ लीकेज ऑफ द गैस। तो विनफील्ड कहता है कि नो,
you will be held liable because you have injured so many persons, you have taken life of so many persons. आपने कितने व्यक्तियों का जीवन ले लिया है और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एंड देयरफॉर टॉर्ट का जन्म हुआ एब्सोल्यूट लायबिलिटी कि कुछ भी हो, अगर आपसे आपकी वजह से आपकी गलती थी या आपकी गलती नहीं थी, because you have been dealing with the hazardous substances and that cause damage, you will not be given opportunity to give any kind of justification or excuse. You will held liable for that. आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी आप किसी भी तरीके से अपने अपकृत्य को जस्टिफाई कर पाए। हम सिर्फ ये देखेंगे आप अत्यंत हैजार्डस, अत्यंत खतरनाक पदार्थों में डील कर रहे थे, आपकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई। अब वो क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी गलती हुई, हैव नो बिजनेस अबाउट दैट। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इससे पहले नहीं था, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्रिएट की गई। तो विनफील्ड का कहना यह है कि हम अपकृत्य विधि में, लॉ ऑफ टॉर्ट में ये नहीं देखेंगे कि पहले से ही कोई लायबिलिटी क्रिएट की गई है या नहीं की गई है, सिर्फ ये देखेंगे आपके कार्य से क्षति हुई एक बार, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। You have injured your neighbor without any justification, you will be held liable. So this is the view of Winfield. समझे आप? अब देखिए आगे इसको क्या मतलब है इस बात का। ये विनफील्ड हो गया, इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके अपोजिट चलिए हम चलते हैं सामंड जी के पास। वो क्या कहते हैं? सामंड साहब ने क्या कहा इसके बारे में? सामंड, दिस इज सामंड, इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। प्लीज सी दिस स्लाइड। सामंड ने क्या कहा? इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एंड अगेन आई विल शो यू, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके प्लिम्स का। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्लिम्स। दिस इज व्हाट? दिस इज द पिजियन होल थ्योरी अभी पढ़ेंगे आप। अबाउट द नेचर ऑफ टॉर्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। दिस इज सामंड। तो जैसे विनफील्ड पर क्वेश्चन आया था वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा सामंड पर। अब सामंड साहब कहते क्या है इसके लिए? इट इज द लॉ ऑफ टॉर्ट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट। ये कहा था विनफील्ड ने, ये कहा सामंड ने। यहां से क्वेश्चन आएगा आपके सामने, देखिए क्या कहते हैं ये, इसको पढ़ते हैं सामंड के शब्दों में कैसे है। द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ अराइजेस, यानी कि अपकृत्य विधि में, अपकृत्य विधि में लायबिलिटी कैसे अराइज होती है? ओनली व्हेन रोंग इज कवर्ड, जब आपका रोंगफुल एक्ट कवर्ड होता है किसमें? बाय एनीवन और अदर नॉमिनेटेड टॉर्ट्स। नॉमिनेटेड मींस प्री डिफाइंड टॉर्ट्स में अगर वो कवर होता है तभी लायबिलिटी अराइज होगी, लाइक असॉल्ट, लाइक बैटरी, लाइक डिसीट, लाइक स्लेंडर। तो व्हाट ही इज सेइंग एग्जैक्टली, दिस इज, आई कैन शो यू हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्फीयर ऑफ लायबिलिटी, स्क्वायर ऑफ लायबिलिटी, स्फीयर ऑफ लायबिलिटी, कुछ भी कह लीजिए, स्फीयर बनाते हैं। चलिए ये होगी स्फीयर। This is the, and these are the nominated torts। आप देख रहे हैं ये nominated torts, तो these are the nominated torts, number 1, 2, number 3, number 4, number 5. These are the nominated torts. What it says, the liability under this branch arises only when the wrong is covered by any one of other nominated torts. It means you committed certain activity this. According to Samand, if your activity this is covered with any one of these, whether it is 2 or it is 1, it is 4, 5 or 3, 1, 2, 3, 4, 5. If your activity can be covered within 1, 2, 3, 4, 5, only then you will be held liable, otherwise not. If you cause injury, if by this activity you causes injury but your act is not covered by any of these 1, 2, 3, 4, 5, then there is no liability at all. समझे आप? नहीं समझे? देखिए समझिए आप लोग। सामंड साहब ने कहा कि देयर आर ओनली स्पेसिफिक नॉमिनेटेड रॉन्ग्स, अगर आपका रॉन्गफुल एक्ट उसमें कवर होता है, इन दैट केस, only in that case you will be held liable, otherwise there will be no liability at all. Whether you are causing injury, it hardly matters,
You did certain activity. This is cross. You did this. Fine. You did this. You caused injury. But your act is not covered out of these 1, 2, 3, 4, 5 as I have shown you. In that case, according to Samand, no liability arises. Winfield कहता कि no, if you have caused injury, अगर आपने इंजरी की है and there is no justification for that, उसका कोई justification नहीं है, then you will be held liable. Winfield and Samand का अंतर आपको समझ में आया होगा. Winfield is saying if you are causing injury, you will be held liable. Samand, even if you are causing injury, but your act is not covered within the nominated torts, you will not be held liable. This is Samand law of torts. मतलब निश्चित टॉर्ट्स हो गए. उन्होंने कहा लॉ ऑफ टॉट, TORT, इट मींस कुछ भी निश्चित नहीं है, इट कैन बी क्रिएटेड. समझे आप नहीं समझे? देखिए इसको और आगे पढ़ते हैं कैसे. तो दिस इज, प्लीज सी द स्लाइड. विनफील्ड ने क्या कहा था? देयर इज नो, देयर इज, गलत लिखा है, देयर इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी. सामने ने कहा देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी. अगेन प्लेंटिफ सेज व्हाट? If the plaintiff can place his wrongs in any one of the pigeonholes, he will succeed. समझे? Now इसके these are the pigeonholes. 1, 2, 3, 4, 5 are the pigeonholes. According to Samand, if the plaintiff can place his wrong in any one of the pigeonholes, there, अगर ये plaintiff साहब हैं, ये रहे plaintiff, ये हो गए सुस्त, सही है? ये प्लेंटिफ हो गए. इफ ही कैन, दीज आर द पिजियन होल्स, PH1, PH2, PH3, PH4, PH5. If he can place his wrong into any one of these pigeon holes, only then he can seek the remedy, otherwise no. This is what, if the plaintiff can place his wrong in any one of the pigeon holes, each containing a labeled tort, he will succeed. समझे? और इसको बोलते हैं इन पिजियन होल्स की थ्योरी, वजह से इसको बोलते हैं पिजियन होल थ्योरी. और इसी पर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था. दिस वाज द क्वेश्चन. द पिजियन होल थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द टॉर्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय whom among the following? The answer was Samand. तो मिल गया आपको जवाब सामंड की थ्योरी का. सामंड gave the pigeon hole theory. This is what, if there is no pigeon hole, if there is no pigeon hole in which the plaintiff's case could fit in, the defendant has committed no wrong. So please see this, very interesting. If there is no pigeon hole, there is no liability. Defendant has committed no tort. Very strange. समझे आप कि किसी को क्षति पहुंची या नहीं पहुंची, ये नहीं देखेंगे हम ये देखेंगे whether this is the tort according to us or not, whether there is a nominated tort or not, or in the words of Samand, जो हमने समझाने की कोशिश की है कि whether there is a pigeonhole for that or not. If your act can come into the category, तो focus in the theory of Winfield. Winfield की थ्योरी में क्या है? Winfield की थ्योरी में focus is on injury. Here in the case of Samand, the focus is on the specific tort, violation of specific rule. There is no specific rule in case of Winfield. There is only what general liability, and liability was not to injure anyone without justification. So this is the difference between Samand and Winfield. I hope you are getting this. Please see this side. Please see this. Then Samand gave the analogy with the criminal law, just as the criminal law, जैसे कि आपराधिक विधि में होता है. What happens in criminal law? Criminal law consists of a body of rules establishing specific offenses. समझे? जैसे कि क्रिमिनल लॉ में, आपराधिक विधि में होता है कि उसमें एक नियमों का समूह है, बॉडी ऑफ रूल्स होता है जिसके द्वारा स्पेसिफिक ऑफेंसेस क्रिएट किया जाता है, एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक ऑफेंसेस. सेम इज विद द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सिमिलरली इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी ऑफ रूल्स एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक
injuries, and therefore you will see Samand has compared criminal law with the law of torts. He says liability in both cases arises from the general principles of liability. And now try to understand. Therefore you will see that Samand has compared the criminal law with the law of torts, and according to him, what is the similarity between the criminal law and the law of tort? There is no general liability, general principle of liability in both cases. According to Samand, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में कोई जनरल लाइबिलिटी नहीं है, वैसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी कोई जनरल लाइबिलिटी नहीं हो सकती. वेदर आई एम प्रोसिक्यूटेड फॉर एन ऑफेंस और सूट फॉर एन एलिज टॉर्ट, रिजल्ट इज सेम. नाउ प्लीज सी दिस साइड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इट का मतलब क्या है इस बात का? सामंड ने क्या कहा? Samand has drawn an analogy between the criminal law and the law of torts. As you say, in case of criminal law में क्या होता है? Criminal law में you will see you can be punished for an offense only when all the ingredients of that offense are satisfied as per the definition of that offense. नहीं समझे आप? आप आपराधिक विधि में किसी भी अपराध के लिए तभी दोषी ठहराए जा सकते हैं जब आपका जो कृत्य है, जो एक्ट है, वो उस डेफिनेशन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करता हो, अन्यथा नहीं होगा. वो आपने कुछ भी किया हो, इफ योर एक्ट डज नॉट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस, यू कैन नॉट बी पनिश्ड. It means you can be punished only if your act is covered by that offense. Every death is not murder. प्रत्येक मृत्यु मर्डर नहीं हो सकती. You will have to see whether that is the offense. It is, see, suppose, जैसे मैं आपको कई बार एग्जाम्पल, जब मैंने आपको आईपीसी पढ़ाई थी, आपको समझाया था कई बार, ये है ना, एक लेडी है, उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है, बेबी है. एक व्यक्ति, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनको बीच बचाव करने के लिए वो लेडी उस बच्चे को लेकर के आ जाती है. एक व्यक्ति जो दूसरे घूंसा मार रहा था, वो घूंसा किसके लगा? उस बच्चे के लग गया और उसकी डेथ हो गई. इन दिस केस डेथ हैपेंस, बट इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 299 और 300. इवन दो देयर इज डेथ, तब भी उसको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर नहीं माना जाएगा, या उसको कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस भी नहीं माना जाएगा. इट वाज बिकॉज इंटेंशन उसकी क्या थी? इंटेंशन वाज टू कॉज हर्ट, देयरफॉर इट विल बी कवर्ड एज ओनली द हर्ट. बिकॉज जो टेक्निकलिटीज क्रिमिनल लॉ की हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वहां पर कोई जनरल लायबिलिटी नहीं है कि जो भी कोई किसी भी वजह से मृत्यु करेगा उसको डेफिनेटली मर्डर मानेंगे. ऐसा नहीं होता क्रिमिनल लॉ में. तो सामन टॉर्ट्स में कह रहा है कि जैसे कि क्रिमिनल लॉ के ऑफेंसेस, क्रिमिनल लॉ के में ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेम काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशन टॉर्ट्स में भी अप्लाई होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन क्रिमिनल लॉ यू पनिश, इन सिविल लॉ, इन टॉर्ट्स you are seeking compensation. There is no general principle of liability in criminal law and there is no general principle of liability in torts as well. तो मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया. दिस वॉज द सामंड, एंड इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की है विनफील्ड की. नाउ आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें. देखिए, नाउ यू विल हैव टू गो टू सपोर्टर्स, कि कौन किसका कितने सपोर्टर्स हैं. एंड यहां से सपोर्टर्स की लिस्ट से है, you will get the question of your claims from the list of the supporters. So there are certain supporters of the Samand, there are certain supporters of Winfield. कुछ विनफील्ड के समर्थक हैं, कुछ सामंड के समर्थक हैं. और आपका यही प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन विनफील्ड का समर्थक है, निम्नलिखित में से कौन सामंड का समर्थक है. यहीं से क्वेश्चन आपको करना होगा और उसको देख लीजिए. नाउ यू विल हैव टू मेक ए लिस्ट. टेबुलर फॉर्म में नोट्स बनाइए, सपोर्टर्स ऑफ द सामंड, सपोर्टर्स ऑफ द विनफील्ड, so that there should be no confusion in your exam. And I am telling you, if you will not make notes like that in tabular form, definitely you will be confused in your exam. You will say this विनफील्ड के समर्थक को आप सामंड का समर्थक बनाएंगे, सामंड के समर्थक को आप विनफील्ड का बना देंगे. तो डोंट डू दैट. भगवान के लिए ऐसा मत करना. जैसे मैंने कहा वैसे कर लीजिए. प्लीज सी दिस नाउ. दिस इज व्हाट इन द फेवर ऑफ द व्हाट आई टेक यू टू स्लाइड्स. स्लाइड से पढ़िए और जहां जहां से मैं हाईलाइट करूंगा P4 प्रीलिम्स लगाऊंगा, वहां पर आप लोग पॉज कीजिए वीडियोस को और वहां पर P4 प्रीलिम्स भी लगाइए. सभी तुरंत के तुरंत. देखिए क्या है.
इन द फेवर ऑफ फर्स्ट थ्योरी यानी विनफील्ड, इसमें कौन कौन आते हैं? In 1702, Ashby versus White case was decided, and in this case, the principle of ubi jus ibi remedium was recognized. Ubi jus ibi remedium, where there is a right, there is remedy. Where there is a right, there is remedy. Ubi jus ibi remedium, where there is right, there is remedium. Ubi jus ibi remedium, ubi jus ibi remedium, ऐसे ऐसे करके घोट लेना इसको। प्लेन में क्वेश्चन कहां से आएगा? First question, in which case law the principle of ubi jus ibi remedium was recognized? Answer is Ashby versus White. Don't forget this. Number one, what is this? What is the use of this case here? In this case, when you say whenever there is a right, there is remedy. Please see this side. When you say wherever is a right, there is a remedy, means we will have to see only whether your right was violated or not, कि आपके क्या कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। हम ये नहीं देखेंगे कि क्या कोई उस जो उल्लंघन को कोई खास टॉर्ट है या नहीं है, जैसा कि सामंत कहता है। हम सिर्फ ये देखेंगे आपका राइट का उल्लंघन हुआ। एशबी वर्सेस वाइट में क्या था? एशबी वर्सेस वाइट में क्या था? एक क्वालिफाइड वोटर वाज नॉट अलाउड टू कास्ट हिज वोट। एक जो एक वोटर था जिसका अधिकार था वोट देने का, उसको वोट डालने नहीं दिया गया था। हिज राइट वॉज वॉलेटेड उबी जस्ट इवी रिमेडियम। इट वॉज सीन इफ यू आर हैविंग राइट, दैट राइट इज वॉलेटेड, वी विल गिव यू रिमेडी फॉर दैट। तो उबी जस्ट इवी रिमेडियम। वाई वी आर यूजिंग दिस? बिकॉज ये जनरल प्रिंसिपल ही है जिसकी विनफील्ड बात करता है। विनफील्ड क्या कह रहा है? इंजरी। इंजरी इज वॉट? वॉलेशन ऑफ लीगल राइट। What the Winfield said? Winfield ने क्या कहा था आपको? देखो ये रहा, this was Winfield ने क्या कहा था? This was the Winfield. Please see this side. This was the Winfield. Law of tort imposes general liability not to injure any person. Not to injure any person means not to violate the legal right of any person. Not to injure any person means not to injure. Please see this, focus on this word. Not to injure means not to violate the legal rights of anyone. This is what? Now you see the line of this. Not to injure means it means you will not violate legal rights of anyone, because if you will violate legal rights, there is a remedy. Where there is a right, there is a remedy. Where there is a violation of legal right, there must be some kind of remedy for that. So basically, ubi jus ivi remedium is explaining or supporting the point of view of the Winfield, and this is the question for you prelims again. Out of following maxims, निम्नलिखित maxims में से कौन सी maxim Winfield के point of view को support करती है? ubi jus ivi remedium कर लेंगे आप लोग। Clearly established in favor of the first theory. Now what is the second question prelims? Don't forget the name of Mr. Holt, Chief Justice Holt. Holt जो है उस केस में जो जज रहे हैं उन पर से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। This can be the question. Out of following who is the supporter of the Winfield? That was the Holt. अब इनके बारे में समझ लीजिए क्या कहते हैं इनका। एशबी वर्सेस वाइट में इनका जो स्टेटमेंट है दैट इज यूजफुल, दैट कैन बी आस्क्ड अगेन इन योर एग्जाम्स। प्लीज सी द स्लाइड, सी द स्लाइड। दिस इज एशबी वर्सेस वाइट, होल्ट सीजे, इफ मैन विल मल्टीप्लाई इंजरीज, if man will multiply injuries means if man will keep on violating the legal rights of other persons, if man will multiply injuries, action must be multiplied too. It means उनके विरुद्ध against or each and every violation of legal right there will be an action for that. For every man who is injured means whose legal right is violated, every man who is injured to have recompense, he should be compensated. So this is the statement of Mr. Holt, and you can expect a question: who gave this statement? Who gave this statement? Action must be multiplied to. Now be smart, you need not to learn each and every word of this statement. You should pick only 2 or 3 words of this statement, और उन स्टेटमेंट्स को, उन वर्ड्स को पढ़ करके आप समझ जाना कि ये जो वर्ड्स हैं
मिस्टर होल्ट ने अपने स्टेटमेंट में यूज किए थे, जो कि रेड कलर में है। आप इसको भी चुन सकते हैं, एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू। हु सेड एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू? मिस्टर होल्ट सेड एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू। यहां से आपका इस तरीके से प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समझ में आता है। इसी तरीके से आप पहुंचिए, मिस्टर प्रेट है, इन द केस का नाम चैपमैन वर्सेस पिकर्सगिल। इन्होंने क्या कहा? टॉर्ट्स इनफाइनाइटली वेरियस, नॉट लिमिटेड और कन्फाइंड। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रेट, यू कैन डू इट नाउ। एंड अगेन Pollock also supported the view of the Winfield. The name of the book of Pollock is Law of Torts, but his editor was the London. He disagreed. Again, these are the questions whether Pollock supported or not. What is the name of the Pollock's book? It is the who was the editor of the Pollock. ये भी इसका क्वेश्चन बनता है आपसे। And creation of new torts. Please see these words. क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये भी सपोर्ट करता है इस बात को। प्लीज समझे, कैसे समझिए क्या क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स। तो ये सामन ने क्या कहा था? सामन ने कहा था कि जो प्री डिटरमिन्ड टॉर्ट्स हैं, इफ योर एक्शन इज कवर्ड विद इन दोज लिमिट्स, विद इन दोज टॉर्ट्स, ओनली इन दैट केस यू हैव द रेमेडी, अदरवाइज डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो रॉन्ग। पढ़वाता हूं आपको, देखिए सामन साहब का, ये था सामन साहब का। देखिए सामन साहब ने क्या कहा था, दिस इज, प्लीज सी द लाइन। ये सामन ने कहा था, इफ देर इज नो पिजियन होल इन विच द प्लेंटिव्स केस कुड फिट इन, द डिफेंडेंट हैज कमिटेड नो टॉर्ट। कि जो प्री एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स हैं, इफ योर एक्ट इज नॉट कवर्ड विद इन दैट, दिस इज, इस पे पढ़ लीजिए, देखिए, इफ द प्लेंटिव can place his wrong in any one of the pigeonholes each containing a labeled tort, he will succeed। ये बात मैं समझा चुका था, है ना, कि अगर जो लेबल्ड है ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग टॉर्ट्स हैं उसमें अगर कवर्ड नहीं होगा तो डिफेंडेंट ने कोई टॉर्ट नहीं किया, ऐसा माना जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इफ न्यू टॉर्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड, व्हाई? It means you are not confining the law of tort with the existing torts। जो पहले पूर्व स्थापित जो अपकृत्य हैं, आप केवल वहीं तक सीमित नहीं हो रहे हैं, अब आप नए अपकृत्य को क्रिएट कर रहे हैं, उनको सृजित कर रहे हैं, नए अपकृत्य को सृजित कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट्स नाउ। तो न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू टॉर्ट्स ऑल्सो सपोर्ट्स द व्यू ऑफ विनफील्ड। विनफील्ड के जो सिद्धांत हैं उसी को और वो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। बिकॉज न्यू टॉर्ट को क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप? बिकॉज देयर इज ए स्कोप, बिकॉज देयर इज द बेसिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी। यू कॉज द इंजरी, यू वॉलेटेड द लीगल राइट, देयरफॉर यू विल हैव टू कंपनसेट। एंड फॉर दैट, इफ देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग टॉर्ट, वी विल क्रिएट ए न्यू, वी विल गिव दिस एक्टिविटी ए न्यू नेम। New tort will be created, just like in the case of rule of strict liability was created in Rylance versus Fletcher। ये मैं पढ़वाता हूं आपको, देखिए, tort of deceit had its origin in Paisley versus Freeman, inducement of breach of contract Lumley versus Dial, and this is rule of strict liability Rylance versus Fletcher, and this is inducement to wife to leave her husband Winsmore versus Greenbank। Negligence as a tort was created, tort of intimidation Rooks versus Bernard, in this tort was। So these are the few torts: tort of intimidation, tort of inducement to wife to leave her husband, tort of negligence, and this is tort of deceit, inducement of breach of contract, rule of strict liability। So I have mentioned these few torts, few new torts are mentioned। मैं आपको पढ़ाया, मैंने आपको। तो ये न्यू टॉर्ट्स जो क्रिएट किए गए वो इसी बेस पे किए गए ना, क्योंकि पहले ये इनका अस्तित्व नहीं था। जैसे जैसे कोई इलीगल एक्टिविटी, रॉन्गफुल एक्ट सामने आता गया, दे kept on creating new torts, and that is basically the what the Winfield is saying। जो Winfield जो कह रहा है वही तो बात है कि there is no boundary for that। Every illegal act, every wrongful act should be compensated, that's it। and wrongful act means violation of legal right here। now question prelims में कैसे आएंगे वो देख लीजिए।
प्रीलिम्स क्वेश्चन में कैसे आएंगे, देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे आएगा, इन विच केस टॉट ऑफ डिसीड, किस केस में टॉट ऑफ डिसीड को प्रोपाउंड किया गया था, घोषित किया गया, पार्सले वर्सेस फ्रीमैन। इस केस में इंड्यूसमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड एज अ टॉट, लूमले। इन विच केस रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर। इन दिस वे, तो ये इसी तरीके से आप देखेंगे, रूल ऑफ टॉट ऑफ इंडिमेटेशन केस ब्रूक्स। तो दे विल आस्क यू the name of the case, they will ask you the name of tort और केस लॉस। तो आपको मैच भी करना पड़ सकता है, मैचिंग के केस हो सकते हैं, एक तरफ केसेस के नाम, एक तरफ क्रिएटेड टॉर्ट्स, उनको मैच करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप रटेंगे, आप लोग कर लेंगे आप लोग। तो दीज वर द सपोर्टर ऑफ विनफील्ड। तो क्या सामंड का भी कोई सपोर्टर है क्या, इज देयर एनीवन हु हैज सपोर्टेड, ओ हेलो, है या नहीं है? तो go to the supporters of Samand, what they have said, whether there is any jurist, whether that jurist has given any statement. If it is so, you will have to note that and you will have to again pick some few words for your memory so that you can take the correct answer in your prelims. Please go to the supporters of now Samand. This is supporter of Samand. This is what Dr. Jang, please read the slide. Dr. Jang favored Samand theory and this is the question of your prelims. Samand theory does not imply that courts are incapable of creating new tort. Jang ने अपनी तरीके से सामंड को डिफेंड करने की कोशिश की है और क्या कह रहे हैं कि सामंड थ्योरी डज नॉट इंप्लाई दैट कोर्ट्स आर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट्स। इस सामंड की थ्योरी का यह मतलब नहीं था कि कोर्ट न्यू टॉर्ट को क्रिएट नहीं कर सकती हैं। तो हमारी बात कहां तक है, हमसे क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा हु सेड दिस, सामंड थ्योरी डज नॉट, यू विल बी गिवन दिस स्टेटमेंट, सामंड थ्योरी डज नॉट इंप्लाई द कोर्ट्स आर इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू टॉर्ट्स। सामंड की थ्योरी का ये अभिप्राय कभी नहीं था कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन नहीं कर सकते हैं। ये वाक्य किसने दिया, आंसर इज डॉक्टर जैंक्स। कर लेंगे आप, डॉक्टर जैंग ने क्या कहा, सी क्या कहते हैं, बढ़ते हैं। डॉक्टर जैंक्स व्यू डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट एज वेरियस न्यू टॉट लाइक डिसीव द रूल ये which have come into existence are not similar to anyone। देखिए इसका क्या कहा है, डॉक्टर जैंक्स ने कहा है, ये बात कही थी इन्होंने। एक्चुअली डॉक्टर जैंग ने क्या कहा कि द कोर्ट्स कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स। देखिए समझिए क्या, डॉक्टर जैंग ने कहा कि न्यायालय नए अपकृत्यों का सृजन कर सकते हैं, कोर्ट कैन क्रिएट न्यू टॉर्ट्स, बट क्या कंडीशन है, बट सच टॉर्ट्स, जो न्यू टॉर्ट्स हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस दे आर सब्सटेंशियली सिमिलर टू दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो ये इन्होंने कंडीशन प्रेसिडेंट कर दी, शर्त लगा दी कि आप न्यू टॉर्ट्स क्रिएट कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जो पहले से पूर्व सृजित अपकृत्य हैं, प्री नॉमिनेटेड टॉर्ट्स हैं, प्री क्रिएटेड टॉर्ट्स हैं, वो उनसे सिमिलर होने चाहिए, सब्सटेंशियली सिमिलर होने चाहिए, तभी आप न्यू टॉर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ये बात किसने कही है, डॉक्टर जैंग ने कही है। आपके काम क्या आएगा, प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है, दोबारा समझाता हूं मैं। डॉक्टर जैंग ने कहा कि देखो सामंत साहब ने ये कभी मना नहीं किया कि कोर्ट न्यू टॉर्ट को क्रिएट नहीं कर सकती। सामंत नेवर सेड, सामंत का मतलब ये नहीं था जनाब कि वो नए अपकृत्यों को सृजन नहीं हो सकता। कौन मना कर रहा है आपको, आप कीजिए नए सृजन, लेकिन एक ही शर्त है और वो शर्त ये है कि जो नए सृजित अपकृत्य हैं वो पूर्व सृजित कृत्यों के समान होने चाहिए, उनसे सामान्य, उनके साथ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उन जैसे हो, तभी आप कर सकते हैं। तो क्या डॉक्टर जैंग का व्यू अपने आप में सही है या नहीं है, आंसर इज डॉक्टर जैंग्स व्यू डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट। उनका जो व्यू है, उनका जो विचार है डॉक्टर जैंग का, वो सही नहीं प्रतीत होता। क्यों, जो न्यू टॉर्ट्स क्रिएट किए गए, जैसे डिसीट किया गया, रूल इन रायलेट फीचर किया, नेग्लिजेंस किया गया, ये 2-3 जो आपको टॉर्ट्स में दिखा रहा हूं, 30 देखिए,
As various new thoughts like deceit, rule in Rylance versus Fletcher, and negligence which have come into existence are not similar to any those thoughts which are already in existence. जो न्यू थॉट क्रिएट किए गए, तो नए अपकृत्यों का सृजन किया गया, वो पूर्व सृजित अपकृत्यों से कोई भी समानता नहीं रखते थे। तो इस समानता की जो शर्त है वो नहीं मानी जा सकती। इसी पॉइंट पर डॉक्टर जैंग के जो विचार हैं वो भी सही प्रतीत नहीं होते हैं। डॉक्टर जैंग्स व्यू डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट। Why? Because the thoughts created like deceit, rule in Rylance Fletcher, or the creation of thought of negligence, this shows that there is no similarity with these newly created thoughts with the earlier thoughts. So this is the Dr. Jang. Now come to the Mr. Houston. क्या कहते हैं ये, इसको भी देख लीजिए। Houston क्या कहते हैं? He is the editor of Salmond's Thoughts. Question Plims, who is the editor of Salmond's Thought? And he says what? Salmond's critics have misunderstood him. सामंड के आलोचक हैं, उन्होंने सामंड को गलत समझा है। तो सही क्या है ये समझाते हैं। क्या कहते हैं? सामंड never committed himself to the proposition that law of thought is a closed and inexpansible system. इन्होंने कहा कि मैं तो एडिटर हूं, सामंड ने कभी ऐसा नहीं कहा कि लॉ ऑफ थॉट्स इज ए क्लोज्ड एंड इनएक्सपेंसिबल सिस्टम। इन्होंने कहा देखो मैं सामंड का एडिटर हूं, आप लोगों ने उनको गलत समझा है। अक्सर एक्चुअली में सामंड ने यह कभी नहीं कहा कि लॉ ऑफ थॉट्स इज ए क्लोज सिस्टम और इनएक्सपेंसिबल सिस्टम है, यानी कि इसका विस्तार नहीं हो सकता है, ऐसा सामंड ने नहीं कहा है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, ये किसने कहा? हु सेड दैट यू मिसअंडरस्टूड दिस सामंड? नेम आंसर इज ह्यूस्टन। आपके काम की तो इतनी सी बात है, बस अगर याद कर लेंगे तो हु सेड दैट क्रिटिक्स ऑफ सामंड मिसअंडरस्टूड हिम? किसने कहा कि सामंड के जो आलोचक है उन्होंने उसको गलत समझा? सामंड ने ये कभी नहीं कहा कि लॉ ऑफ थॉट्स इज ए क्लोज सिस्टम और इट इज एन इनएक्सपेंसिबल सिस्टम। ये बात कही थी ह्यूस्टन ने। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर ग्लेनविले विलियम्स की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? डॉक्टर ग्लेनविले विलियम्स, इनकी बुक का नाम है द फाउंडेशन ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि द फाउंडेशन ऑफ टॉर्चस लायबिलिटी किसने लिखी? नेम इज व्हाट? ग्लेनविले विलियम्स। ऑल्सो मेक्स ए सिमिलर रिमार्क रिगार्डिंग सामंड्स थ्योरी। सो ही इज द सपोर्टर, ग्लेनविले इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ सामंड। क्या कहते हैं? To say that law can be collected into pigeonholes does not mean that those pigeonholes may not be capacious, nor does it mean that they are incapable of being added to. देखो कितनी सुंदरता से बढ़िया तरीके से ग्लेनविले विलियम्स ने बात को संभालने की कोशिश की है। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। To say that law can be collected into pigeonholes, ये कहना कि विधि पिजियन होल्स में ही कलेक्ट की जा सकती है, डज नॉट मीन, ऐसा कहने का अभिप्राय ये नहीं है द पिजियन होल्स में नॉट बी कैपेसियस एनफ। इसका मतलब नहीं जो पिजियन होल्स है उनमें अपने आप में स्थान नहीं होगा, कैपेसियस नहीं होगा, पर्याप्त उनके अंदर विस्तार नहीं होगा। ना ही इसका यह मतलब है नो डज इट मीन दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडेड टू, और ना ही इसका मतलब यह है कि पिजियन होल्स में और पिजियन होल्स ऐड नहीं किए जा सकते। तो ये इतनी सुंदर भाषा को याद करने का आपका कोई मतलब नहीं है, समझे आप लोग? इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है हु वर द सपोर्टर्स ऑफ द सामंड, हु वर द सपोर्टर्स ऑफ द विनफील्ड, एंड उनके स्टेटमेंट से कुछ शब्दों को पिक करके आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। अब इन दोनों के कंक्लूजन की बात आते हैं कि वेदर विनफील्ड इज राइट और सामंड इज राइट। समझे आप? अब लास्ट में यही करना पड़ेगा हमें। तो कंक्लूजन लाएंगे यहां पर कि एग्जैक्टली है क्या, वेयर डज द करेक्ट व्यू स्टैंड्स, सही व्यू सही स्टैंड इसमें कहां पर होगा, वेदर विनफील्ड इज करेक्ट और सामंड इज करेक्ट। In that case, don't forget the name of Dr. Williams. Please see the slide. Dr. Williams sums up the controversial position like this. So this is the question of prelims. Who summed up the correct position? Controversial position. This is Dr. Williams.
The first school has shown the rules of the first school has shown that rules of liability are very wide. कौन से रूल्स? रूल्स ऑफ liability. Rules of liability are very wide, and the second school has shown that rules of absence of liability are very wide. So rules of liability and rules of absence of liability. Now see this side. डॉक्टर विलियम्स क्या कह गए, समझना पड़ेगा आपको. देखिए पहले का मतलब क्या है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना करना है, पहली लाइन याद कर लीजिए काम. या फिर सेकंड बात में क्या आएगा, हु सेड दैट रूल्स ऑफ हु सम्ड लाइक दिस, कि रूल्स ऑफ लायबिलिटी आर वाइड, रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड. ये किसने कहा था? डॉक्टर विलियम ने कहा था. ये आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से. अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझिए कि इन्होंने कहा कि विनफील्ड जो है, विनफील्ड जब की जो बात कहते हैं कि देयर इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी को बहुत बड़ा करके बता रहे हैं. रूल्स ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, बिकॉज एवरी इंजरी विल बी कंपनसेटेड. So liability is very wide in the case of Winfield. Similarly, in case of Samand, Samand is saying you can be held liable only for the specific wrongs, and beyond that there is no liability. Means absence of liability is very wide in case of Samand. नहीं ऐसा नहीं, दोबारा समझ लीजिए. देखिए ये कहना है कि जो विनफील्ड है, विनफील्ड ने कहा कि अगर आपने किसी को भी इंजर किया, किसी को भी क्षति पहुंचाई या किसी के भी विधिक अधिकार का हनन किया, तो आपको लायबल ठहराया जाएगा. तो आपकी लायबिलिटी हर एक केस में होगी जहां पर आपने किसी के विधिक अधिकारों को हनन किया. तो योर लायबिलिटी, योर रूल्स ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड इन दिस केस. रूल्स ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड इन दिस केस. बट इन द केस ऑफ सामंड, सामंड ने क्या कहा कि योर लायबिलिटी विल अराइज ओनली व्हेन योर केस कैन बी पुट इन द पिजियन होल्स और इन द नॉमिनेटेड टोर्ट्स. आपकी लायबिलिटी तभी होगी किसी कार्य के लिए जब पूर्व स्थापित अपकृत्यों में उनको किसी के अपकृत्य में किसी में के अंदर में उसको प्रूव किया जा सकता हो. अदरवाइज आपने कुछ भी किया हो, इंजरी हो, तब भी आपके कार्य को अपकृत्य नहीं माना जाएगा. अपकृत्य नहीं माना जाएगा मतलब एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी होगी. तो इन केस ऑफ सामंड, रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड. इन केस ऑफ विनफील्ड, रूल्स ऑफ लायबिलिटी आर वेरी वाइड. ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? विलियम ने कही थी. यही आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाए. समझ में आता है आपको? लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि विनफील्ड ने ही इस कंट्रोवर्सी को कंक्लूड करने की कोशिश किया इन दीज वर्ड्स. प्लीज सी दिस स्लाइड नाउ. विनफील्ड मेड ए मॉडिफिकेशन इन हिज स्टैंड रिगार्डिंग हिज ओन थ्योरी. अपनी ही थ्योरी के बारे में उन्होंने एक उसमें मॉडिफिकेशन किया. क्या कहते हैं? बोथ हिज एंड सामंड्स थ्योरी वर करेक्ट. कि मेरी थ्योरी भी ठीक थी और सामंड की थ्योरी भी ठीक थी. हम भी ठीक, तुम भी ठीक, काहे का झगड़ा. बोथ हिज एंड सामंड्स थ्योरी वर करेक्ट. दिस इज द मॉडिफिकेशन डन बाय द विनफील्ड. क्या कहते हैं? क्या बोथ हिज एंड सामंड्स थ्योरी वर करेक्ट? कैसे? द फर्स्ट थ्योरी फ्रॉम ए ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू. मेरी थ्योरी करेक्ट है फ्रॉम द ब्रॉडर पॉइंट, विस्तृत उसमें अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे आप तो मेरी थ्योरी ठीक है. द अदर फ्रॉम ए नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सामंड की थ्योरी ठीक है. तो क्या मैटर करता है? पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में कैसा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव में आप उसको देख रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा. तो दोनों ही थ्योरी ठीक है अपने आप में. जैसे कि उन्होंने बात को समझाने के लिए ट्री का सहारा लिया. पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस क्या होता है कि ट्रीटिंग ए ट्री एज इनएनिमेट बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट. एक व्यू ये हो सकता है दैट यू कैन ट्रीट ए ट्री टू बी इनएनिमेट बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ हिज पोजिशन. वो जहां पर होते हैं वहीं पर खड़े रहते हैं, उनकी स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो हम उनको कैसे कह सकते हैं? उनको कह सकते हैं मृत मान सकते हैं, अजीवित मान सकते हैं, इनएनिमेट मान सकते हैं बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट. बट ट्रीटिंग ए ट्री एज एनिमेट,
आप उसको जीवित मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैज ग्रोन, क्योंकि उसमें वृद्धि हुई है, एंड स्टिल ग्रोइंग, और वो अभी भी बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से एक ट्री को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि आप ये देखें कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो इनएनिमेट है, यानी मृत है, वो जीवित नहीं है। तो ये भी स्टैंड सही हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, वो कहेगा देखो ये ग्रो, अभी तक ग्रो हो रहा है, पहले छोटा सा था, अभी बड़ा हो चुका है, और अभी भी ये बढ़ रहा है, स्टिल ग्रोइंग। इट मींस इट हैज ए लाइफ, इट इज एनिमेट। समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ व्यू हुआ दो अलग अलग लोगों का, एक ट्री को, एक पेड़ को देखने का एक अपना नजरिया हुआ। तो उस नजरिए पे डिपेंड करता है अब किस नजरिए से लॉ ऑफ टॉर्ट को देखते हैं। समझे? तो लास्ट का जो कंक्लूजन ये रहा आपके सामने, दस इट इज दस ए क्वेश्चन ऑफ अप्रोच। ये अप्रोच का प्रश्न है बस, एंड लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम ए सर्टेन एंगल। ईच थ्योरी इज करेक्ट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रत्येक थ्योरी अपने आप में सही है। इट ऑल डिपेंड्स कि विद व्हाट अप्रोच यू आर कंसिडरिंग द लॉ ऑफ टॉट। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टॉपिक वेदर द लॉ ऑफ टॉट इज ए लॉ ऑफ टॉट और इट इज द लॉ ऑफ टॉट्स। तो हमने इतनी डिटेल्स के बियॉन्ड जाने की आपको जरूरत नहीं है। समझे आप? तो मैंने आपको ये टॉपिक कवर कराया है। I advise you not to go beyond that. Whatever I have taught you, जो भी मैंने समझाया है, इससे फर्दर डिटेल्स में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो जहां मैंने हाईलाइट कराया है, उन हाईलाइट्स को वैसे ही याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए। इस सब को कंक्लूड करेंगे शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ से मेन से तैयार करेंगे। वहां पर क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं? वहां पर आप स्टेटमेंट्स को, जो इंडिविजुअल लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसको भुला दीजिए। आप उदाहरणों को भुला दीजिए। केवल जो मेन डिफरेंस है, मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू विनफील्ड का है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू सामंत का है, और उनके क्रिटिक्स या उनके सपोर्टर्स के नाम को याद रखिए, उनके जस्टिफिकेशन को याद रखिए, और लास्ट में कंक्लूजन को कीजिए। 300 to 350 वर्ड्स में शॉर्ट नोट लिख करके आप मुझे दिखा सकते। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इट इज लॉ ऑफ टॉट और इट इज लॉ ऑफ टॉट्स। And thank you very much. तो फ्रेंड्स, आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियोस हम लोग एज ए डेमो वीडियोस पोस्ट करते हैं कि ये दीज वीडियोस आर द पार्ट ऑफ आवर वीडियो प्रोग्राम। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, उन वीडियोस का एक पार्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और आप लोग अगर समझते हैं कि हम आपको गाइड कर सकते हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विद दीज वर्ड्स।